In this video, we are going to discuss about printf and scanf functions, which are basically used for input and output operations. So let's see one by one. So first, we are going to see printf function. Okay, so basically printf function is used to display the message or print the variable values or a string. So printf function used to display message, string or a variable. On the output screen or console screen. Now let's see the syntax of printf function. So when we are going to print the message or a string, then at that time its syntax will be printf, then parenthesis, and in a double inverted comma there will be a string. Okay, whatever you want to print the message or whatever you want to print the string, you can write in between these two double inverted commas. Okay, that will be displayed on the output screen. आप जो कुछ भी इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा. एंड दिस प्रिंटफ फंक्शन इज एंड विथ द सेमीकोलन. ओके, एंड फॉर प्रिंटिंग द वेरिएबल, for that syntax of printf function will be in the double inverted comma. जो कोई भी आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा अकॉर्डिंग टू यूर वेरिएबल डेटा टाइप, इंटीजर होगा तो %d, फ्लोट होगा तो %f, कैरेक्टर होगा तो %c, लाइक दैट. फॉर्मेट स्पेसिफायर and then comma, and here your variable whatever you want to print, and then end with the semicolon. Okay, now let's see the program. Suppose we are taking variable and a and assigning a something value. Okay, I'll assign here 15. So if we are going to print, suppose I have to print the hello message. Okay, then in the double inverted comma I'll just print here hello and then I'll close. Okay, so at the output what we get here, simply just hello message. Okay, now if I want to print this variable, okay, I have to print this variable a, so at that time its data type is integer. So what we take here as a format specifier, %d, and then comma, and then just simply this a variable and end with the semicolon. Okay, so at the output what we get, the value of this a. What is the value of this a? 15. So it will print the 15. Okay, suppose we are taking the float variable, float suppose pi 3.14, and if we are going to print this
then printf function. Now here variable pi and its data type is float. So for float data type %f format specifier is used, and then simply this pi variable, okay, and end with the semicolon. Then at the output what we will get, 3.14, okay, like that. So let's see the scanf function. So scanf function basically is used for the input, okay. आप जब यूज़र से इनपुट लेने वाले हो at that time we use scanf function for storing that value whatever user enters. So scanf function is used to take input from user, okay. scanf फंक्शन यूज़र से ड्यूरिंग रन टाइम इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं. तो उसका सिंटैक्स देखते हैं. सिंटैक्स, so scanf function then parenthesis और इन द डबल इनवर्टेड कॉमा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा अकॉर्डिंग टू वेरिएबल डेटा टाइप. ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स चेंज होंगे. एंड देन एम्परसेंड का सिंबल एंड देन वेरिएबल नेम, ओके. सो इसका आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर तो पता चल गया कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग, वेरिएबल किस डेटा टाइप का है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज होंगे. %d, %f, %c, ओके. एंड दिस वेरिएबल इज यूज्ड फॉर आप कौन से वेरिएबल का डेटा यहाँ पर स्टोर करने वाले हो, ठीक है. और ये एम्परसेंड क्या इंडिकेट करता है, तो इन द स्कैनफ आप यहाँ पर जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर देने वाले हो उसके अंदर ये उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा सिर्फ, ओके. एड्रेस स्टोर करेगा. और जब हम प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे, सपोज प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पर सपोज इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और फिर यहाँ पर हम ए प्रिंट करेंगे. तो ये जो एड्रेस यहाँ पर स्टोर हो रहा है और ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पर प्रिंट किया है, तो उस एड्रेस के अंदर की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी, ठीक है. यहाँ पर स्टोर करते वक्त हमने एड्रेस स्टोर किया, लेकिन हम जब वही वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो वो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, वो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा और फिर उसके अंदर की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करके देगा प्रिंटफ फंक्शन, ओके. इन द स्कैनफ फंक्शन एड्रेस स्टोर होगा, लेकिन व्हेन वी आर प्रिंटिंग दैट वेरिएबल देन एट दैट टाइम वहाँ पर उस वेरिएबल की एड्रेस के बजाय वैल्यू प्रिंट करके देगा, ओके. सो प्रोग्राम देखते हो. सपोज हम यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं नंबर.
अब हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, ठीक है। हम यूज़र से इनपुट लेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक प्रिंटफ फंक्शन लेंगे और यूज़र को पता भी होना चाहिए कि हमें वहाँ पर क्या ऑपरेशन करना है। तो उस मैसेज को द्वारा हम यूज़र को बताएंगे कि उसे क्या करना है। तो हमें यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसे कहेंगे एंटर अ नंबर, तो वो समझ जाएगा कि हमें यहाँ पर कोई भी नंबर एंटर करना है, ठीक है। क्लोज कर देंगे और अब वो क्या करेगा, इसके आगे एक नंबर इनपुट करेगा। सपोज उसने 16 नंबर इनपुट दिया और हमें वो स्टोर भी करना है। तो स्कैनफ फंक्शन लेंगे, इस वेरिएबल का हम इस वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर करने वाले, ठीक है। तो इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d, ठीक है, कॉमा एम्परसेंड, क्योंकि हम स्कैनर फंक्शन यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पर उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें एम्परसेंड लिखना पड़ेगा। और फिर उस वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो ये जो इनपुट है वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, राइट। और इस वेरिएबल में स्टोर होने के बाद अभी ये क्या करेगा, यहाँ पर एड्रेस को पॉइंट करेगा और हमें फिर ये नंबर प्रिंट भी करना है। तो अगेन हम प्रिंटफ फंक्शन लेंगे, अगेन फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड देन सिंपली अब हम नंबर को प्रिंट करेंगे। यहाँ पर एम्परसेंड हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करनी है, ना कि एड्रेस। तो मेमोरी लोकेशन में जहाँ पर भी ये वेरिएबल पॉइंट कर रहा होगा एड्रेस को, उस मेमोरी लोकेशन के अंदर की जो भी वैल्यू है, जो कि यहाँ पर क्या है 16, वो हमें प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो एट द आउटपुट हमें क्या मिलेगा, पहले तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। सपोज ये आउटपुट स्क्रीन होगी हमारी, और इस आउटपुट के अंदर पहले तो ये मैसेज प्रिंट होगा जो कि क्या है, एंटर अ नंबर, ठीक है। फिर यूज़र क्या करेगा, एंटर करेगा, वो यहाँ दिखेगा और फिर वो स्टोर होगा और हमने फिर क्या किया है, प्रिंट किया है उस नंबर को। तो ये सिंपली नेक्स्ट लाइन पे नंबर प्रिंट करके देगा। तो आपके आउटपुट पर ये एग्जैक्टली ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।